Hello and welcome. Today we will learn how to find the electric potential energy of system of charges. There are various system of charges, out of which the simple one is this one. Simple 2-point charges are placed at a distance. What is the potential energy of system? You know potential energy is the work done. So you know the formula for potential energy of two charges, point charges. Q1, Q2 separated by a small distance r. Potential energy, that is K Q1, Q2 by r. This is the basic formula for calculating potential energy. Now in this the answer will be, that will be K Q square upon 5r. That is your answer first. This problem is solved. But if you are given the four discrete charges placed at the corner, you can also easily solve it. So what will be your answer? In this case, I rub it out, I have solved it. Now, what will be answer for it? You know, there are four sides of this. So, four pairs. So, the potential energy will be K, Q square upon side is A. So, this is A. These are four pairs. 1, 2, 3 and 4. So, multiply it by 4. Plus, these diagonals. There are two diagonal pairs. So the distance between two charges placed at the corner, that is root 2a. This is root 2a. So this will be k q square divided by root 2a. But these are two pairs, so multiplied by 2. This is your answer for this. Okay. Now I have taken the third problem as this one. This is the cube. The charges are placed at the corners. There are 8 corners of this cube. I draw its diagram again. This one, 8 charges are placed. You know it has 8 corners. This one, Q, 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 Q. This one in this way, and side is suppose A. What will be the potential energy of system? So you have to calculate how many pairs, possible pairs. 8 charges, we have to take 2 at a time. So 8C2, you can use this formula. That will be 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial. It will be 8 into 7 divided by 2, 28. There will be 28 pairs. So which are those 28 pairs? First of all, I make you understand with the help of this. This is the shape of a cube. अब यहाँ पे आप देखिए एक 8 कॉर्नर्स हैं इसके ये. तो एक तो ये फेस हो गया नीचे, ये फेस, इसके ऊपर दो फेस, और इसका हम कर चुके हैं, इस फेस का हम कर चुके हैं सिंगल का. अभी इसके अंदर एक तो ये फेस डायगोनल्स हैं, 2 फेस डायगोनल है, हर फेस के अंदर 2 फेस डायगोनल हैं, और 4 ये पेयर्स हैं. ऐसे ही अपर फेस में भी सेम होगा. और उसके बाद ये 4 पिलर्स 1 2 3 4, इनके बीच में भी सेम डिस्टेंस ए सब में. तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो देखो 4 तो ये 1 2 3 4 तो ये 4 ऊपर 8 और 9 10 11 और 12 पेयर्स तो ये हो गए. तो 28 में से 12 तो ये हो गए. प्लस अब इस फेस के अंदर जो है फेस डायगोनल कितने हैं? 2. टोटल फेस कितने हैं इसके? 6. तो 6 इंटू 2 12, तो 12 प्लस हो गए. अब कितने पेयर्स और बच गए? 28 थे टोटल, तो 4 पेयर्स. वो 4 पेयर्स कौन से हैं? वो 4 पेयर्स हैं अगर मैं इस कॉर्नर से और इसके उस टॉप कॉर्नर पे यहाँ इसका बॉडी डायगोनल, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल. और बॉडी डायगोनल कितने हो सकते हैं इसके अंदर? इस कॉर्नर से इस अपोजिट कॉर्नर और इससे, तो ये 4 बॉडी डायगोनल्स हो सकते हैं इसके अंदर. और बॉडी डायगोनल में डिस्टेंस रूट 3 है, तो 4 बॉडी डायगोनल्स. तो ये तो हो गए हमारे एडजेसेंट साइड्स के पेयर. ये हो गए हमारे फेस डायगोनल और ये हो गए बॉडी डायगोनल. बॉडी डायगोनल में डिस्टेंस कितनी लेनी है हमने? रूट 3a. फेस डायगोनल में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस रूट 2a और इसमें a. तो योर आंसर विल बी, आई एम राइटिंग स्ट्रेट वे. पहले इसके लिए 12 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a. अब सेकंड ये फेस डायगोनल के लिए 12 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फेस में कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस, दैट इज रूट 2a. प्लस अब बॉडी डायगोनल में इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर पे यहाँ 1, और इस कॉर्नर से ये अपोजिट कॉर्नर 2, ऐसे ही ये 3 4 टोटल होंगे. तो 4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 3a. ये हमारा आ गया इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी.
अब ये तो था हमारा डिस्क्रीट चार्जेस हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जस्ट लाइक एज यू कैन सी, यहां पे देख रहे हैं आप, ये होलो स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? अगर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होती तो आंसर क्या होता? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5r, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो वी कैन नॉट ट्रीट देम एज ए पॉइंट चार्ज। तो हाउ विल यू कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? तो उसके लिए हमें पहले इसकी अलग से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होलो चार्ज स्फीयर, इसकी बोलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, इसकी अपनी खुद की। और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड चार्ज स्फीयर, इस दोनों की। तो फर्स्ट वी विल लर्न द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो मैं बता देता हूं। इसके लिए आएगा हमारा के क्यू स्क्वायर बाय 2r, ये होलो की होती है, और सॉलिड के केस में आएगा ये 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r, ये सॉलिड के केस में होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और होलो के केस में ये होती है ये। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पूरे सिस्टम की? ये फॉर्मूला कहां से आया? आई विल डिस्कस, वी विल डिराइव दिस फार्मूला। तो ये कहां से आया ये तो वो करेंगे हम। तो अभी इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पहले ये पोटेंशियल एनर्जी ये इसकी भी सेम होगी इतनी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r इंटू 2 करेंगे तो दिस विल बी 2 प्लस, अब ये एज ए पॉइंट चार्ज भी तो एक्ट करेंगे। टोटल चार्ज तो दो चार्ज के बीच में अगर ये रखा हुआ है और इसको दूसरे को इसके नजदीक लेके आए तो भी तो वर्क करना पड़ेगा। इस चार्ज को असेंबल करने में कितना वर्क करना पड़ा ये, और इस चार्ज को इस पे असेंबल करने में वर्क कितना करना पड़ा अगेन, ये दोनों का टोटल हो गया ये। नाउ इस होलो स्फीयर को, चार्ज स्फीयर को इसके नजदीक लेके आने में इंफिनिटी से तो भी वर्क करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा वर्क कितना होगा? तो दैट विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर, इसका पोटेंशियल पता होना चाहिए। जैसे आई टेक बिल्कुल बिगिनिंग से बताता हूं, अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है और इससे r डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज इंफिनिटी से लेके आना है यहाँ पे, तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा हमारा के क्यू बाय आर, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वेरी सिंपल। अब इस चार्ज को रिप्लेस कर दिया हमने विद ए चार्ज्ड होलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं इसको, इससे रिप्लेस कर दिया, और इसके कारण कहीं भी अगर उसका पोटेंशियल निकालना है यहां पे इसके सरफेस पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर इसकी रेडियस r है तो वो हो जाएगा दिस, और टोटल चार्ज इस पे q है तो ये फॉर्मूला। अगर ये कहां से आया? वो बहुत ही सिंपल है, ये सारे पॉइंट चार्ज मान लो, ये पॉइंट चार्ज है हमारा dq, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा कहीं भी अंदर निकाल लेंगे तो k dq अपॉन r, और पूरे इसके कारण निकालेंगे अंदर तो इंटीग्रेट करेंगे इसको तो वो k q अपॉन r ये। और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो होता है इसके अंदर, चार्ज जब है ही नहीं वहां पे तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू नो E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो V कांस्टेंट होगा, और V कांस्टेंट होगा तो जो सेंटर पे चार्ज पोटेंशियल होगा वही सरफेस पे होगा। तो इसकी सरफेस पे निकाल लिया हमने पोटेंशियल। अब सरफेस पे पोटेंशियल पता है हमें, ये देखो अब ये अनचार्ज है, इसका कोई पोटेंशियल नहीं है, हमने इसको चार्ज दिया स्लाइटली कहीं से इंफिनिटी से इस पे लेके आए, शुरू में मान लिया Q1 बिल्कुल माइन्यूट चार्ज लेके आए तो नो वर्क इज डन, फिर Q2 मतलब बिल्कुल स्मॉल उसमें क्वांटिटी में, तो वो उसको रिपेल करेगा, वर्क इज टू बी डन। तो हमने धीरे धीरे इस पे चार्ज असेंबल करना शुरू कर दिया। सपोज इस पे Q चार्ज ही असेंबल हुआ है, जो भी यहाँ पे असेंबल होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट दिस स्फीयर, यहाँ पे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन आर। अब हम इसको एडिशनल चार्ज और देना चाहते हैं dq, स्मॉल चार्ज, ताकि इसका जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q हो जाए। तो इसका पोटेंशियल, इसका वर्क डन क्या होगा, कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है हमारा? के क्यू बाय आर इंटू डी क्यू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो दिस इज के अपॉन आर क्यू डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 टू क्यू, इसको सोल्व करेंगे ये फॉर्मूला आ गया हमारा।
तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारी आ गई के क्यू स्क्वायर बाय 2r। ये r इसकी रेडियस है। ऐसे ये हम कर चुके। अब ये अगर सॉलिड चार्ज है तो कैसे निकालेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर, बट थोड़ा सा कैलकुलेशंस थोड़ा सा बिट लार्ज इसमें। रीजन क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। जब चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है तो कौन सी डेंसिटी लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम ये मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते थे, तो इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये चार्ज जो है इस पे हमने असेंबल करना है, और मान लिया हमने यहाँ पे इतने पे असेंबल कर चुके हैं हम यहाँ पे ये, और इसकी रेडियस x है। हमने इसको पूरा जो है चार्ज करना है, इसको धीरे धीरे 1 बाय 1, तो हमने अभी इतना ही चार्ज किया है, लेकिन इसकी टोटल सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो रो है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, dq अपॉन dv, या टोटल चार्ज अगर q असेंबल करना है तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r3। ये नाउ अब देखो इसका अगर चार्ज असेंबल करेंगे तो इसका पोटेंशियल भी होगा कुछ, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना इस पे चार्ज आया q, और उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे के क्यू अपॉन r की जगह क्या लेंगे यहाँ पे x। ओके, अब ये पोटेंशियल है। अब इसको और चार्ज देना है हमने dq, और चार्ज देने से क्या होगा अभी बताता हूं। देखो ये इतना तो चार्ज हो चुका है, ये बिल्कुल इतना चार्ज हमने स्टोर कर लिया। अब इसको और चार्ज देना, और चार्ज इसके ऊपर ही तो स्प्रेड होगा, और ऊपर स्प्रेड होगा तो वो ऐसे इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाएगी, ऐसे इतने वॉल्यूम के अंदर वो चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा ये इस वॉल्यूम के अंदर, और इस वॉल्यूम के अंदर ये dq चार्ज हमने इसको और देना है, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, दैट इज जो भी पोटेंशियल इसका था इनटू dq, ये कॉन्सेप्ट। अब इस v की वैल्यू पुट कर देंगे और dq की वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो देखो। अब v कितना होगा, ये रहा हमारा, तो दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय x, क्योंकि ये रेडियस x है तो ये डिस्टेंस dx वेरी स्मॉल, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ये लग रहा है डिस्क, लेकिन है क्या, ये स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये सरफेस एरिया इसका अंदर का कितना हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर, तो उसमें dx से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा बाहर, और उसके अंदर चार्ज है तो इसके ये dq की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये जो dq की वैल्यू कैसे लिखेंगे, दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। अब इसको इंटीग्रेट बड़े ध्यान से करना है, इसको इंटीग्रेट ध्यान से करना है। इसमें हमने इस q की वैल्यू भी पुट करनी है अभी, क्योंकि ये चार्ज भी तो वेरी करेगा, जैसे चार्ज असेंबल होता जाएगा ये चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, कैपिटल Q। तो यहां से इस Q की वैल्यू यहां से पुट करो, दैट इज, इसको अभी मैं स्मॉल मान लेता हूं। उस टाइम पे अगर ये Q चार्ज असेंबल हुआ है रेडियस x पे, तो रो क्या होगा, दैट इज Q ओवर 4/3 पाई x क्यूब, ये होगा। तो अब इसको जो है यहां पे पुट कर देंगे Q की वैल्यू, U विल बी इक्वल टू K, Q की जगह आ जाएगा रो 4/3 पाई x क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू रो 4 पाई x स्क्वायर dx। तो इट विल बी K रो इंटू रो, दिस विल बी रो स्क्वायर, ये 4/3 यहां भी है और यहां भी है, तो इसको हम 4 पाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और x3 यहाँ x स्क्वायर, तो x5 डिवाइडेड बाय x, तो ये x4 बच जाएगा यहाँ पे dx, और नीचे ये 3 और रह गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन। तो ये जो है इसको हम फर्दर जो है सॉल्व कर लेंगे, एंड दिस विल बी, दिस कैन बी रिटन एज k रो स्क्वायर 4 पाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3
एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन विल बी x5 डिवाइडेड बाय 5 और लिमिट इसकी यहाँ x की वैल्यू कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा r, तो 0 to r। तो इसको फर्दर जो है अगर सॉल्व करेंगे k रो स्क्वायर 4 पाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू r5 डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो रो है इस पूरे स्फीयर के लिए, सॉलिड चार्ज स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? टोटल चार्ज इस पे हमने q स्टोर कर लिया और टोटल वॉल्यूम इसका 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि ये रो यूनिफॉर्म लेके चले हैं। तो रो की वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, तो यहाँ पे ये करेंगे तो दिस विल बी k क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा नीचे, दिस विल बी 4π/3 r क्यूब होल स्क्वायर, और एक 3 यहाँ पे पहले भी है, ये नीचे देखो ये 3 है यहाँ पे अलग से, और इधर आ गया r5 डिवाइडेड बाय 5 और ये 4π का होल स्क्वायर भी लिखेंगे। अब इसमें 4π यहाँ भी है हमारा ये, तो 4π स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और r6 हो गया, ऊपर r5 तो नीचे r रह जाएगा। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा तो ये k तो बचेगा ही बचेगा, और ये 3 का होल स्क्वायर और ये 3 तो एक 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 और 5 ये है नीचे, 3/5 k क्यू स्क्वायर और नीचे बच गया था हमारा r। तो दिस विल बी दी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ओनली, सिर्फ इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी ये होगी, इतनी ही इसकी होगी। तो फाइनल एनर्जी कितनी आएगी इस सिस्टम की? तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसका डबल करो 6/5 k क्यू स्क्वायर अपॉन r प्लस, अब जब इस सिस्टम को इस सिस्टम के नजदीक लेके आएंगे तो भी तो वर्क करना पड़ेगा, ये तो इसकी अपनी एनर्जी थी दोनों की, इसको इसके नजदीक लेके आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। उसमें पॉइंट चार्जेस का जो है फार्मूला लगा दो सीधा, दैट इज k क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस है दैट इज 5r, और इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 7k क्यू स्क्वायर बाय 5r। दिस इज योर आंसर। थैंक यू।